એ લોકોને કઈ ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટી છે એટલે પેલા સોરી ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वैच्छायाणम् नमो दोये सब साहुनम् एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सभ्यसिं पाढमं हवै मंगलम् पाढमं हवै So let us start today's pravachan. Before pravachan, we think the Mangal Bhavana by our kids. So it is Jian's birthday. So he's excited to recite his prayer, which is his evening prayer. He used to sleep with Mangal Bhavana, auspicious thinking. So Jian, is it your birthday? Yes. So motivate them to recite something and let them do themselves. So where is your sister? Your sister is coming. It's okay. You can No, because she go get practiced. she's And in also, Yeah. Mike, Mike, how can, I move it a little forward? or you can come here. Come on this. Anna is there. Yeah. Stand up here. Yeah, Anna, you can stand here. Anna, yeah. Yes. So fold your hands in prayer pose and start. One. 1, 2, 3, start. Yes. Mangal Bhavana. Shri. Sri. Yeah. Okay, we'll sing together. Okay. Together.
Ahana, start. Ahana, you start it, right? Shri Sampanno Ri Sampanno Di Sampanno Driti Sampanno Shakti Sampanno Shanti Sampanno Nandi Sampanno Teja Sampanno Shukla Well done. Anna did very good Mangal Bhavana. Jiyantuk. वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, समवसरण। How many of you know about Samavasaran? Most of. Most of. Okay. Samavasaran has very special meaning. We can hire a very, very good banquet hall or nice pravachan hall or nice stadium. We can decorate. Even can we compare with Samavasaran? Why not? Who made any saint, any king, any queen? Deva Maya. So divine beings. And which Dev specially? Who donates so much? So Dharmik Dev ordered. And who take out the all money? Kuber. खबर तो छे तमने. Who is Kuber? Khazanawat. Khazanchi means he has power. Like apni committee ma, in our committee, you know, treasurer ni mahiti important થાય છે. કોણ હોય treasurer? He keep incoming balance, outgoing, and his eyes are very eagle eyes. And he think who can add in it. Because he don't own it, but he takes security, safety, and enhance the all money. So that work is Kuber's work. So the Kuber is responsible to provide all materiality. And today's study, material culture is very important. Material culture means here कि जैन धर्म आबू देलवाड़ा फेमस छे and Ranakpur temple famous and many other temple Tarangaji. But outside India, if you go Chicago, and now this year everybody is thinking who have gone or not gone, they have plan.
in their plan that we will visit Chicago Temple on the America Bhumi's Tirth and also Jaina convention. So in convention, we show a replica of Samavasaran. Why it is so important? Anybody can tell me that any historical person who got enlightenment and liberated on the first sight of the Samavasara. कोई के गणधर, कोई के गौतम स्वामी, मैं कोई व्यक्ति का पूछती हूँ। नहीं, बहनों की तरफ से आया मरुदेवा। कौन बोल रहे? ओहो, मरुदेवा। मरुदेवा माता खबर छे? You know history? Prehistoric time. Adinath Bhagwan and his first Samavasaran after Keval Gyan. And in that Samavasaran, the mother herself got ready and she was coming because she is queen. She was very, very famous and mother of first Tirthankar. So she got on the elephant and she was coming. And first sight, when she saw the Samavasaran from distance, and there and then, all four karmas, ghati karmas, totally annihilated, and she got enlightenment. And there was no time between enlightenment and total liberation. Annihilation of 8 karmas, and she got liberated. So in this time cycle, who was the first Siddha? Who was the first Siddha? Marudeva Mata. And Marudeva Mata, when she saw this beautiful texture, beautiful architect, and beautiful this Samavasaran, and from distance she has seen Bhagavan, because Bhagavan is depicted in such a way due to his Atishay. He is visible all foresight. Chaturmukhi, we do replica, we make replica today, but it was real that Bhagavan is visible to front, back, left, right, all side. Bhagavan's visibility to everybody. So when she got liberated, and after that, the story is become so famous. Even today, that Samavasaran replica is created in every temple, and the Puja Tirghata. If you do puja and you take Puja's Tirghata, that Bhagavan is there. So that is also a replica of same Samavasaran. Now I would like to move, and my second question is there, like you human beings, be a Sravak, lay follower, is there any lay follower, men and women, but is there any animals who became lay follower of Bhagavan Mahavir? Tiryancha Prani, Manushya is there, divine beings are there, but Tiryancha Prani, they also get that type of feeling, and they comes as a elephant, horses, or in any form, they come, they visit, they reach up to the top. So my question is, how any animal got that type of purity? Who is activating that inside them?
because they don't go to listen any pravachan, like today you are here. So they don't get that type of opportunity, and their mind and reasoning mind is not that much sharp as human being. So how this is possible? Who informed them that Bhagwan's Samavasaran is there? Today, I'm asking you a question. Jati Smriti. One point. Jati Smaran Gyan. But many other points too. When Bhagwan comes to the Samavasaran, divine being, they use a specific instrument that is bheri. And the bheri is when they blow it, Dundubi. Devdundubi. Devdundubi, when they blow it, then it is audible to 12 yojan. And not only human being motivated, that special sound touched the heart of animal, birds, and every living beings. And then they listen, oh, I have heard such divine instrument in my past lives. So that is Jati Smriti. But some, they motivated due to the annihilation of special karma. And then they got ready, they motivated, and they make their way towards Bhagwan's Samavasaran. And so why the meaning Samavasaran named as Samavasaran, not any other meaning? So it is also important. Sam means equal. There is, like, if you go in any movie or any theater or any special program, you can buy ticket of the first row or the gallery or balcony or whatever. But here there is no restriction, whoever comes. But the setting is very, very important. Who will sit and who has that space? So Samavasaran, Sama means equal. Saran means everybody get equal saran from Bhagwan. Bhagwan की शरण सबको समान है. वो सबको समान है, फिर भी वहां हायरार्की भी है, वहां सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है. और समवसरण के सिटिंग अरेंजमेंट की बात भी क्वालिटी पर आधारित है. किसकी कितनी क्वालिटी है, ज्ञानावरणीय का कितना क्षोभसम हो गया है. Who can sit in the front row? Who can sit the right side of Bhagwan, left side of Bhagwan, back side of Bhagwan, and lower back side of. So all these arrangement, the story comes through the Uttaradhyan Sutra in commentary literature, that Gautam Swami was very eminent and first Gandhar of Bhagavan. And his labdhi was enormous. And therefore, many people, they start their day, their shop, their office with the name of Gautam Swami. First of all, they recite. So Gautam Swami, one day, he went Ashtapad Parv. And from the Ashtapad mountain, he was returning back 500 tapas. They listen about Mahavira, about Samavasaran, and their curiosity was so much, they say, we would like to go with you. And Gautam Swami again motivated them, and they say, yes, we want to join Mahavir's Samavasaran. Can you initiate us? And there and then, Gautam Swami initiated them in Jaina Dharma. And with the huge crowd of 500 monks, he was coming towards the Samavasaran. As soon as they saw
the dhwaja of the Samavasara. Few of them, they got enlightenment and Keval Gyan. After some time, some reached near the Samavasaran and they seen the Samavasaran, and looking at the Samavasaran, again few hundred they got again Keval Gyan. So very few were without Keval Gyan. Rest of them attained the Keval Gyan after watching, looking and seeing the sight itself, and they became Keval Gyan. So again, very important that Marudeva Mata, and after that many tapas, they attained Keval Gyan, and therefore this type of Trighata or this type of Samavasara, पार्टिसिपेंट है उसका मिनिमाइज कर सकते हैं तो पूरा रीड कर सकते हैं। yes. Yeah. तो समो शरण मीन्स शरण सबके लिए है और ये सेक्रेट स्पेस है. So when they entered in the Samavasaran, Gautam Swami definitely in his mind, still Gautam Swami is not enlightened. So he thought, let me tell them that they should sit in the common monk's row. So when the old Keval Gyani tapas, they went towards the Keval Gyani side, and then Gautam Swami said, don't go there, stay here, I will guide you. And then he heard what say Bhagwan said, "Oh Gautam, don't do this mistake. Kevali ki asadhana mat karo." And Gautam Swami said, what? I initiated them and they became Keval Gyani. How it is possible? It is a miracle, but it happened. So when Bhagwan said, okay, let them go in their row, in the seat of Keval Gyani, and they reached that side. So again, this is an biggest example that some sacred cultures, some sacred type of things, and their design, their architect, everything matters. So they got enlightenment. Again, as I mentioned, so Dharma Indra ordered. So what is the process of making a samosara? When you acquired this place and making a sacred place, Jain center of South Florida, when you made it, so how you made? You acquired this space. After that, you try to build, try to make the purification of the land. Because ये धरती कब किसने यूज की है, कैसे कैसे यूज हुई है, nobody knows. धरती धरती है और धरती सबको धारण करती है, अच्छा बुरा everything is there. So धरती कैसे हुई, कैसे उसको काम में लिया गया, तो सोधर्म इंद्र आकर के सबसे पहले 4 योजन की भूमि को साफ करते हैं, उसकी सफाई होती है, अच्छी तरह से सफाई होती है. उसके बाद गंधोदक, दे स्प्रिंकल द वाटर, और अच्छी तरह से उस भूमि को शोधन करते हैं. और पानी भी शोधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा
बहुत सारे रिचुअल होते हैं, और जो भी डिवाइन बीइंग है उनका आह्वान होता है, पानी को चार्ज किया जाता है, फिर पानी को सब जगह स्प्रिंकल किया जाता है। व्हाई? वाटर हैज ए प्रॉपर्टी। जो जापानीज साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज मिला, और उन्होंने वाटर की प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है, वाटर की प्रॉपर्टीज को कैसे उसके शेप बदलते हैं, ये सब जाना, और उसको जान करके उन्होंने ये नई रिसर्च दी कि पानी पर सब प्रभाव होते हैं, हमारे भावों के प्रभाव होते हैं, मंत्र के प्रभाव होते हैं, और दूसरे प्रभाव भी होते हैं। मंत्र को कई बार कोई ऐसी स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, पानी को मंत्रित किया जाता है और रोगी को पिलाया जाता है। पानी को मंत्रित किया जाता है, कोई भी घर, दुकान, कोई भी नया इनॉग्रेशन कुछ भी होता है, भूमि पूजन होता है, तो उस समय भी पानी की महिमा है। तो देवताओं ने गंधोदक से उस भूमि को, 4 योजन की भूमि को शुद्ध किया, और शुद्ध करके 3 परकोटे बनाए। वॉल बना देना, वॉल भी एक बड़ा प्रोटेक्शन है, और वॉल से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी जगह है। तो इतनी 4 योजन की, और 4 योजन में आप देखिए 3 कोस का, यानी मोर देन 3.5 कोस का, मोर देन 4 माइल का, इतना बड़ा जगह, और 4 into 4 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 12 माइल जितनी जगह है, उतनी जगह पर ये समोसरण बिल्ट होता है। तो बहुत बड़ी जगह है, और इस बड़ी जगह में आप देखेंगे कि कैसे समवसरण के वॉल, कुबेर का है खजाना, इसलिए सबसे पहले चांदी की वॉल, सोने की वॉल, फिर माणिक की वॉल, 3 प्रकार की ये वॉल्स हैं, और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट है, और उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी बड़ा स्पेशल है। आप देखेंगे कि हर डायरेक्शन से कोई नहीं, ईस्ट डायरेक्शन से कौन आएंगे? वैमानिक देवियां और नन्स आएंगे। इसलिए आजकल कई बार इंडिया में हम सुनते हैं कि भगदड़ मच गई, इतने लोग मारे गए, कुंभ में भगदड़ मची तो कितने लोग मारे गए, अमुक साधु की जो भी जो प्रवचन सभा थी वहां भगदड़ मची तो उसमें भी लोग मारे गए। तो यहाँ इतनी बड़ी पब्लिक है, और पब्लिक के साथ एनिमल बर्ड्स भी हैं, तो कोई किसी को हर्ट नहीं होता, और सबके अरेंजमेंट। तो ईस्ट गेट से साध्वियां आती हैं, वैमानिक देव आते हैं, और मंक्स आते हैं, साधु आते हैं, और मंक्स की अरेंजमेंट है कि वो बैठ जाते हैं, देवियां खड़ी रहती है, और नन्स भी खड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन मेरे कई बार मन में आता है कि भाई लेडीज को तो खड़े कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कभी किसी ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद साउथ से भवनपति गोडेस आती है, फिर वेंतर गोडेस आती है, फिर ज्योतिष गोडेस आती है। तो सारी जो दक्षिण से देवियां आ रही हैं वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में, जितना प्रवचन चलता है उतनी देर वो खड़ी है। फिर भवनपति गॉड, वेंतर गॉड और ज्योतिष गॉड, वो उनको वेस्ट से आना है, और वो सब खड़े हैं, वो सब बैठे हैं। और ईशान से इंद्र आते हैं, इंद्र भी कम नहीं है, 64 इंद्र है, और एक एक के अटेंडेंट भी हजारों हजारों हैं, तो उनकी भी प्लेन जैसे विमान आते हैं, तो वो उनकी पार्किंग स्पेस भी बना हुआ है।
हजारों हजारों एक साथ आते हैं, उनके विमान कहाँ पार्क करेंगे? आजकल गाड़ी पार्क की आपको समस्या रहती है, और इंडिया में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है कि भी कहाँ पार्किंग ढूंढेंगे। तो इनके पार्किंग लॉट भी बने हुए हैं कि डिवाइन बीइंग की सारी गाड़ियां, उनके जो विमान है वो बड़े बड़े एरोप्लेन से भी बड़े, आज के हमारे एरोप्लेन है उनसे भी बड़े हैं, और उनके पार्किंग लॉट बने हुए हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट है। और उसमें मेरे मन में तो एक ही प्रश्न आया कि भाई मुझे वर्तमान में तो नहीं, लेकिन पहले मैं 1 घंटा खड़ा ध्यान कर सकती थी, 1 घंटे। लेकिन आप मुझे कहे कि 2 घंटे खड़ी हो जा, 3 घंटे खड़ी हो जा, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, मैं नहीं खड़ी हो सकती इतना देर एक ही पोजीशन में। लेकिन भगवान का प्रवचन कितना, हमारे को आप 1 घंटा देंगे और 1 घंटे में सारा काम हम पूरा करते हैं। भगवान का प्रवचन तो एक ही, कम से कम 1 प्रहर, और ज्यादा चले तो ज्यादा भी चलता था। तो क्या बेचारी देवियां, साध्वियां टायर्ड नहीं हो जाएंगी? टायर्ड होके कभी गिर नहीं जाएगी? ये मेरे को क्वेश्चन आया, लेकिन समाधान मिला। भगवान का अतिशय है, अतिशय प्रभाव है, और उस प्रभाव से कोई भी व्यक्ति टायर्ड नहीं होगा, किसी को नींद नहीं आएगी। भगवान के समोसरण में, हमारे प्रवचन में किसी को थोड़ी सी नींद आ सकती है, लेकिन भगवान के प्रवचन में, भगवान की देशना में अतिशय है कि किसी को नींद नहीं आएगी, कोई भी टायर्ड नहीं होगा। जिसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में वो, उसको तो ऐसे लगेगा अभी शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया। काल का भी उसको भान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 34 अतिशय, 35 वचनातिशय, वाणी भी ऐसी होती है। कभी कभी शायद आप किसी कॉन्सर्ट में जाओ और वो आप भाई बड़ी टिकट पे करके जाते हैं, तो कॉन्सर्ट भी लंबी चलती है, और फिर भी आपको पूछे तो आपको लगेगा, यदि आपके मन पसंद की है, बोरिंग होगी तो आप सोचेंगे अरे बार बार घड़ी देखेंगे, लेकिन मन पसंद गाने हैं, मन पसंद म्यूजिक है, मन पसंद आपका गायक और गायिका है, तो आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल, हिलेंगे भी नहीं, आप बस आनंद में रहे। तो वैसे ही भगवान की वाणी का इतना प्रभाव है, इतना अतिशय है कि उसके कारण न देवी देवता को परेशानी है, और न उनको साध्वियों को और देवियों को खड़े खड़े सुनने में शरीर का कोई भी खेद होता ही नहीं है। 12-12 योजन तक कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी कफिंग नहीं होगी। हम तो सोचते हैं भी खांसी आ रही है तो जैन सेंटर नहीं जाएं, और फीवर आ गया है या कुछ हो गया है तो नहीं जाएं, अवॉइड करें ताकि दूसरों को ना। लेकिन यहाँ किसी को खांसी भी आ रही थी तो ठीक हो गई, उतने समय के लिए तो खांसी, सब ठीक हो गए। सब कुछ ठीक हो जाता है। ये भगवान का अतिशय है, और इसलिए अतिशय को बार बार हम याद करें कि हम समव शरण में पहुंच गए हैं। और समव शरण का जो ये ध्यान है, वह भी कई बार मैं देखती हूँ कि समव शरण का ध्यान भी हमें करना चाहिए। तो ये जो मटेरियल कल्चर, ये आर्ट न केवल आर्ट आर्किटेक्चर में है, लेकिन ये पट दर्शन में भी है। कहीं कहीं ऐसे पट बनाए गए हैं और क्लोथ पेंटिंग की जाती है, और उसके आधार पर वो पट दर्शन में भी समव शरण के दर्शन होते हैं। और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वुडन आर्ट, मैं आपको अजमेर का टेम्पल दिखा रही हूँ,
और ये अजमेर का दिगंबर टेम्पल है, जिसमें समवसरण को थोड़ा और अधिक स्पष्ट किया गया है। उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ कि ये हस्तिनापुर की साइड का है, लेकिन यहाँ हम इन्फ्लुएंस देखते हैं कि समवसरण पर कुछ बुद्धिस्ट आर्ट का भी प्रभाव है और हिंदू आर्ट का भी प्रभाव है। और कई जो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं वो इसको देखकर हमें बताते हैं कि जैन टेम्पल में भी एडाप्टेशन हुए हैं, दूसरी परंपरा ने हमारा भी एडॉप्ट किया है, तो हमने भी दूसरी परंपरा से एडाप्टेशन किया है। आप एक और चीज देखते हैं कि बीच बीच में जब इंटरवेल पीरियड आता है तब भगवान कहाँ चले जाते हैं। इंटरवेल, आप सब कहीं गए और इंटरवेल हुआ तो आप लोग बाहर निकलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कुछ देखते हैं। तो यहाँ जब इंटरवेल होता है तो इंटरवेल पीरियड में लोग कहाँ चले जाते हैं? लोग तो बाहर चले जाएंगे, इतनी सुंदर रचना है, देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, लेकिन भगवान कहाँ जाएंगे? क्या भगवान भी बार बार घूमेंगे? नहीं, भगवान गंधकुटी जो ऊपर का भाग है उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो ये भी एक नई हमें नॉलेज मिला। और हम देखते हैं कि भगवान की जो ये ट्रेडिशन है, जब समवसरण का निर्माण किया जाता है तो बाहर आप देख रहे हैं एक स्तंभ बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है? मान स्तंभ। सबको पता है। इसकी इंपोर्टेंस क्या है? मान मुकी ने तो, क्योंकि हम किसके सामने जा रहे हैं? महाराजाधिराज, वो भी देवाधिदेव, उनके दर्शनार्थ जा रहे हैं, उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। तो ये मान स्तंभ का भी वैल्यू होता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि भी मैं तो इतना बड़ा सेठ हूं, मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा ये है वो है। तो जो काउंटिंग आपके माइंड में चल रही है उसको लेकर भीतर नहीं जाओ। अभी मुझे पता नहीं है इसको कितना यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे टेम्पल में आज भी मान स्तंभ बाहर बनाया जाता है। तो ये मान स्तंभ का अर्थ यही है कि जो भी राजा महाराजा आते वो भी अपना मुकुट उतार देते थे, क्योंकि वो भी उनके सम्मान का प्रतीक है। और साथ में सचित वस्तुएं होती, कोई फूल लगाया हुआ है, कोई ऐसी चीजें, तो उसको भी छोड़ते थे। और कहा जाता है कि राजा आदि भी अपने जूते उतार कर जाते थे। तो ऐसे, और भगवान के सामने यानी वो खुले मुंह नहीं बोलते थे, छत्र और छत्र धारण करके आते, वो भी उनके राजसिक प्रतीक था। तो छत्र को भी बाहर छोड़ देते थे। और राजा होते तो उनके भी चमर डोलाए जाते हैं। तो छत्र, चमर, जो भी उनकी राजसिक जो कैपेसिटी होती, जो राजसिक उनका सम्मान होता, उसको भी वो बाहर छोड़ के जाते कि मैं किसके सामने ये अपना वैभव दिखाऊं। तो इस प्रकार ये मान स्तंभ एक स्पेशल पिलर है टू डिसॉल्व द ईगो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। और अब एक प्रश्न फिर है कि पशु पक्षी, एनिमल बर्ड्स और साधु साध्वी, देव देवी सब आते हैं, तो क्या सभी चले जाते हैं? Everybody can reach there? Any eligibility? Yes. कौन सी एलिजिबिलिटी है? भव्यत्व। केवल भव्य जीव ही जाएंगे।
अब आपसे प्रश्न है कि अभव्य को कौन रोक लेता है? हैं? It happens. ये तो है, लेकिन आखिर कहाँ अटकता है? जैसे वो भेरी बजी तो सबका मन होता है ना, भाई चलो 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 सब जाएंगे, हैं? मेरा नेबर जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, मेरी सासू जा रही है, तो मुझे भी जाना है। हर व्यक्ति तैयार होगा और इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, तो कोई मिस तो नहीं करना चाहेगा। लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? Who is stopping them? मिथ्यात्व। लेकिन मिथ्यात्व से भी आगे अभव्यत्व, पारिणामिक भाव है, और वो जीव एफर्ट करके भी जा नहीं सकते। भाव ही नहीं बनते। उनकी पहली बात है, वो सोचेंगे ये तो कितने दिन के लिए लगा हुआ है, बहुत लंबा मेला होता है, तो आप भी सोचते हैं आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं कल जाएंगे, और वो 1 महीना 15 दिन फिनिश हो जाते हैं। और फिनिश होने के बाद अरे यहाँ ये चीज हुई थी, हम तो मिस कर गए, और हम क्या सोचते हैं, चले जाएंगे, कई दिनों का लगा है, चले जाएंगे। तो एक तो उनका टाइम ऐसे पास हो जाता है। सेकंड, वो स्टार्ट करते हैं और आते हैं, लेकिन डिवाइन बीइंग्स वो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, नीचे इतने बाग बगीचे, शॉपिंग सेंटर और बहुत सारी चीजें बना देते हैं, और लोग इंटरटेनमेंट। वही एंटरटेनमेंट में लग जाते हैं, ऊपर चढ़ते ही नहीं। आपने देखा होगा, हीरे की दुकान पे भीड़ नहीं होगी, लोग अपॉइंटमेंट करके आते हैं। जो बड़ी बड़ी ऐसी स्पेशल शॉप्स होती है ना, उनको पहले अपॉइंटमेंट देते, और तब उनको एक एक व्यक्ति अटेंड करता है, उनको माल दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मन हुआ फटाफट चढ़ गया चला गया। तो ऐसी स्पेशल जो शॉप्स होती हैं, वहां कभी क्राउड नहीं होती। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पे चले जाओ, टॉम डिक हैरी सभी चढ़ जाएंगे, सभी उसमें जाएंगे, और सभी कुछ न कुछ खरीद लाएंगे। आई एम राइट? ओके। तो जो भव्य जीव है, उनके ही भाव इतने बनेंगे। और सीढ़ियां कितनी है, चलो एक आपकी फिर टेस्ट लेते। सीढ़ियां कितनी है? चढ़ना है सब। चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, सरल तो नहीं है ना। कितनी सीढ़ियां है? यहाँ चित्र में तो आपको 5-10 दिखाई देगी, लेकिन इतना जो योजन में बना है, इतना ऊंचाई है, तो सीढ़ियां है 30,000। 30,000 सीढ़ियां है। कैसे चढ़ते हैं? उनमें भी जो आज के एक्सीलेटर जो लगे हुए हैं ना आपके, उससे भी बहुत फास्ट है। वो चढ़े एक पे तो वो फर्स्ट मंजिल में पहुंच जाएंगे, फिर दूसरे में चढ़े तो सेकंड में चले जाएंगे, और तीसरे में चढ़े तो सीधे। तो ये इतनी 30,000 यानी 10-10 हजार की एक एक खेप है, उसको वो मिनटों में पार, मिनट भी नहीं लगता, ऐसी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन जो अभव्य जीव है, वे नीचे ही उलझ जाते हैं, और नीचे ही एक एक चीज देखने लगते हैं, और उसी को देखते देखते उनका दिन खत्म हो जाता है, देशना पूरी हो जाती है, लोग वापस चले जाते हैं। तो वो सोचते हैं चलो आज नहीं तो कल आएंगे, और ऐसे वो मिस कर देते हैं। हमको स्टोरी जैसा लगता होगा, लेकिन हमारे जीवन में भी 60 वर्ष आ गए, 50 आ गए, 40 आ गए, 70 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, और हमने बहुत बार सोचा कि हमको ये चीजें मेरे काम की नहीं। अपने जीवन में भी, अपने जीवन में भी ये मुझे नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ,
दिस इज नॉट गुड फॉर माई वेल्थ एंड दिस इज नॉट गुड फॉर माई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सबको पता है, मुझे भी पता है, मैं आई इंक्लूड माई सेल्फ विद यू। फिर भी हमको प्रमाद आ जाता है, जागरूकता कम हो जाती है, और हम क्या करते हैं, आज आज रहने दो, आज आज कोई बात नहीं चलेगा, और ऐसा सोच करके सोते हैं तो फिर उठेंगे नहीं, और उठे हैं तो बैठेंगे नहीं, बैठे हैं तो करेंगे नहीं। ऐसा प्रमाद हमारी आत्मा भी अनेक बार कर लेती है। तो धन्य है वो जीव जो जाग गए हो। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को कहा, उठिए नोपमाइए, उत्तराधीन सूत्र का 10वां चैप्टर, और उसमें उठिए नोपमाइए, जाग गए हो, अब मत करना कभी प्रमाद। तुम जाग गए हो, एक बार जागृत हो गए तो अब सोना नहीं है, और सो करके हमें अपना समय खोना नहीं है। तो ये समवसरण की आर्ट हमें याद दिलाती है। समवसरण घर मंदिर में भी बनाए जाते हैं। समवसरण की महिमा इतनी है कि समवसरण के लिए अलग से जो वॉल पेंटिंग भी होती है, और समवसरण के लिए पूरे पूरे टेम्पल भी डेडिकेटेड किए गए हैं। कई कई बार पोस्ट कार्ड भी निकाले गए हैं, और समवसरण के टिकट भी बने हैं, बुक कवर भी बने हैं, समवसरण की आर्ट भी बनती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अब एक नया ट्रेंड आ रहा है। डिज्नी वर्ल्ड कभी पुराना नहीं। डिज्नी वर्ल्ड, अब देखिए, मैं 27 साल पहले अमेरिका आई थी, तो मुझे भी किसी ने दिखाया था कि भी ये डिज्नी वर्ल्ड है, और मैं देखते हूँ 27 साल बीत गए, अभी भी लोग वैसे ही जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, और बच्चों के साथ मम्मी पापा दादा दादी सभी देखते हैं, 1 बार 5 बार है, देखते रहते हैं। तो हमारे मुनिश्री प्रमाण सागर जी दिगंबर मुनि हैं, और काफी उनकी सूझना रहती है हाउ टू कनेक्ट न्यू जनरेशन विद जैन धर्म। तो उन्होंने शिखर जी पर गुणायतन की निर्माण किया है, और वहां समवसरण के राइट बन रहे। तो अब देखिए, एक ही समवसरण जो भगवान का समवसरण था, उसके नाना प्रकार के रेप्लिका हुए, और उस रेप्लिका का काम एक ही है, याद बनी रहे, हमारी स्मृति में ताजा रहे कि जैसे वो जीव भगवान बने, हमारी आत्मा में भी भक्त से भगवान बनने की ताकत है। वी कैन बी द सेम। तो सीइंग एंड बीइंग, सीइंग एंड बिलीविंग, तो ये कल्चर हमें याद दिलाता है कि बार बार we can see and one day we can be। अस्तु, मैं इस बात को अब यही संपन्न करती हूँ कि ये एक प्रकार का लाइट हाउस है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान की प्रेजेंस की याद दिलाता है, सैक्रेड स्पेस है, मटेरियल कल्चर है, और जेनरेशन टू जेनरेशन व्यक्ति चला जाता है, लेकिन कल्चर को पास ऑन करने के लिए ये महत्वपूर्ण समवसरण हमें भगवान और भगवत्ता की याद दिलाता है। ओम अर्हम। आपको कोई क्वेश्चन हो तो 1-2 मिनट देती हूँ, अन्यथा थोड़ी सी भक्ति आज की।